Hello everyone, guys. This is Sarfahan, and today we are going to discuss about O-level chemistry, paper 1, multiple choice question of October-November 2022, variance 12. All right. The duration of this paper is 1 hour. Let's see what we have in this paper. Which piece of apparatus would be most suitable for measuring exactly 35.00 cm cube of aqueous ammonia? The first thing is 35.00 cm cube. That is accurate volume. All right. And the most important thing is we are measuring aqueous ammonia, which means it is not a gas, because aqueous ammonia is actually ammonium hydroxide, and ammonium hydroxide is not a gas. So we cannot use gas range. All right. So option C is incorrect. Now, option B is also incorrect because जो पिपेट होती है वो 25 cm क्यूब की होती है और वो 25 cm क्यूब ही मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता. So we cannot measure 50 cm cube volume through pipette. So B is also wrong. Since we need the accurate measurement, so for accurate measurement we cannot use measuring cylinder because measuring cylinder से volume accurate नहीं होता. Not an accurate volume. Okay, so obviously right answer is going to be an A. Let's move on to the next question. Oh wow, next question is looks like easy and at the same time tricky. When iron reacts with dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is formed, and the reaction for this statement is going to be like this. HCl है, it is converting into FeCl2 and hydrogen gas. Okay. Impurities in the iron mean that some hydrogen sulfide gas is also formed. Hydrogen sulfide gas is basically soluble in water. Okay. Water vapor can be removed from a mixture of gases using concentrated sulfuric acid. That means it is used as a drying agent. All right. Now, which diagram shows apparatus suitable to prepare a pure dry sample of hydrogen? So guys, we need pure dry sample of hydrogen gas. So option A is incorrect because जब आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ये हाइड्रोजन गैस इस थिस्टल फनल से यहाँ से रिलीज हो जाएगी, इस गैस रेंज के अंदर कलेक्ट नहीं होगी, यानी यू वोंट गेट द एक्यूरेट volume of hydrogen gas. All right. So option A is incorrect because of the fact that this thistle funnel is open. The gas releases from here and won't collect in the gas range. बाकी B में, C में और D में यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ से गैस जो है वो रिलीज नहीं होगी, एस्केप नहीं करेगी. So competition exists between B, C and D. Now the B is option is also incorrect. उसकी वजह ये है कि जो आपकी डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब एक्चुअली इस सॉल्यूशन के अंदर डिप होनी चाहिए, और ये वाली जो डिलीवरी ट्यूब है ये सॉल्यूशन में कभी भी डिप नहीं होती एज पर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का चैप्टर. सो ये क्योंकि डिप नहीं है और ये डिप हो गई है, इसलिए ये टेस्ट ट्यूब की जो अरेंजमेंट है ये रॉन्ग है, which is why B is incorrect. ओके, हम यहाँ लिख देते हैं अरेंजमेंट ऑफ डिलीवरी ट्यूब इज इनकरेक्ट. Now competition exists between C and D. D is also incorrect because जब आप concentrated sulfuric acid is used as a drying agent, जब वो हाइड्रोजन गैस को ड्राई कर देगा और फिर आप उसको वाटर से पास करोगे तो वो हाइड्रोजन वापस मॉइस्ट हो जाएगी और यहाँ पर मॉइस्ट गैस कलेक्ट होगी, जबकि वो हमसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वी नीड अ ड्राई सैंपल. इसका मतलब ऑप्शन डी इज इन आल्सो इनकरेक्ट. सो गाइस विल गो फॉर सी एंड सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. और सी क्यों करेक्ट है?
क्योंकि यहाँ से गैस रिलीज होगी नहीं। आप इसके थ्रू स्लोली एंड ग्रेजुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करोगे, रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये डिलीवरी ट्यूब डिप हुई हुई है, तो जाहिर सी बात है जो वाटर वेपर वगैरह है वो सारे के सारे यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस मॉइस्ट फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगी, यहाँ H2S भी डिसॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मॉइस्ट फॉर्म में रिलीज होगी, सल्फ्यूरिक एसिड में आएगी, बबल होगी, यहाँ से ड्राई फॉर्म में निकलकर इस गैस रेंज के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Okay. The following tests are carried out in a sample of green crystals. Okay, green crystals. So according to my lecture, green crystals आपके पास दो हैं. The first one is copper carbonate, and the second one is chromium sulfate. क्योंकि दोनों का ग्रीन कलर होता है. ओके, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट, द क्रिस्टल्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. ऑब्वियसली ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है. And this is soluble in water. Okay, and the resulting solution is divided into two portions. Okay, aqueous sodium hydroxide is added to the first portion. A green precipitate is formed, and these green precipitates are soluble in excess aqueous NaOH. Guys, कॉपर के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे NaOH के साथ वो ब्लू आएंगे, और ग्रीन आ रहे हैं तो इसका मतलब इट हैज टू बी क्रोमियम 3+ आयंस. तो इसका मतलब ये जो आपके पास टेस्ट है ये क्रोमियम को कंफर्म कर रहा है. क्रोमियम आयंस प्रेजेंट. ओके, next is the solution form is heated and a gas is produced which turns litmus paper blue. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस फर्स्ट पोर्शन के अंदर जहां क्रोमियम आयंस अवेलेबल थे वहां एक और ऐसा आयन अवेलेबल था जिसको NaOH के ऐड करने पे जब हमने हीट किया तो एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो गैस लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है. इसका मतलब रेड से ब्लू हो रहा है. इसका मतलब दैट शुड बी एन एल्कलाइन गैस. तो इसका मतलब यहां से एल्कलाइन गैस रिलीज हो रही है, एंड अमोनिया इज द ओनली एल्कलाइन गैस. और अमोनिया कब प्रोड्यूस होता है? जब अमोनिया माइंस जो हैं वो अवेलेबल हों. तो अमोनिया माइंस प्रेजेंट. सो दिस टेस्ट शोज क्रोमियम 3+ बिकॉज कॉपर का तो ब्लू कलर होता है. दिस टेस्ट शोज प्रेजेंस ऑफ अमोनिया माइन, क्योंकि जब भी कोई अमोनिया माइन होगा और आप उसको एक्वस NaOH के साथ मिक्स करेंगे, हीट करेंगे, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी व्हिच टर्न्स डैम रेड पेपर ब्लू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, dilute nitric acid is added to second portion followed by aqueous barium nitrate. So when we are adding barium ions and if you get white precipitates, इसका मतलब this solution contains sulfate ions. इसका मतलब we have जो सैंपल है हमारे पास उसमें हमारे पास क्रोमियम सल्फेट है, उसमें हमारे पास अमोनियम सल्फेट है. तो इसका मतलब अमोनियम आयंस हैं, क्रोमियम आयंस हैं, सल्फेट आयंस हैं. So obviously A is going to be the correct option. Okay. All right. Next question is, which changes of state occurs between solid, liquid, and gases? Which changes are occurring P, Q, R, and S? Okay. देखो, गैस से लिक्विड जाते हो तो कंडेंसेशन होती है. सही है. लिक्विड से सॉलिड जाते हो तो ऑब्वियसली फ्रीजिंग होता है. सो बेसिकली पी तुम्हारे पास क्या है? कंडेंसेशन. क्यू क्या है तुम्हारे पास? फ्रीजिंग. एंड आई थिंक बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि और कोई हमारे पास एडजस्ट नहीं हुआ इस तरह से. राइट, फॉर श्योर कह रहा हूँ बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बट बाकी भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है. सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो इसका मतलब मेल्टिंग. और लिक्विड से गैस जा रहा है तो इसका मतलब बॉइलिंग. तो आर जो है वो बॉइलिंग
और S जो है वो melting, and therefore B is going to be the right answer. Question number 5. The table shows information about some oxides. For which of elements nitrogen, phosphorus, sulfur and silicon could this information about their oxides be correct? अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए. आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड्स होते हैं, एक होता है NO और एक होता है NO2. फॉस्फोरस का ऑक्साइड बहुत सारे हैं, वैसे P4O10 भी होता है और P4O6 भी होता है. सल्फर के भी दो ऑक्साइड्स होते हैं, SO2 and SO3, और सिलिकॉन का भी ऑक्साइड होता है विच इज SiO2. अब हम आगे पढ़ते हैं वो क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो ऑक्साइड है उसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूलर इन सब के हैं, ये सब सिंपल मॉलिक्यूलर हो गए. एक पॉइंट तो मेरा कवर हो गया कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर ये तीनों सिंपल मॉलिक्यूलर ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर होता है. और एक चीज और कंफर्म हो रही है कि ये सारे के सारे ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स है. ऑल ऑफ देम आर एसिडिक ऑक्साइड्स. और किसी भी एसिडिक ऑक्साइड्स को जो तुम आई मीन इन एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देंगे. तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं. क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं तो ऑब्वियसली ये एसिडिक सॉल्यूशन देंगे. तो वो ये कह रहे हैं डिसॉल्व्स टू फॉर्म एन एसिड. तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों मिलकर एसिडिक सॉल्यूशन देंगे आपको. इनके ऑक्साइड्स एसिडिक सॉल्यूशन देंगे. तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर ओनली. सो आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. हम यहाँ पर ऐड एक और पॉइंट कर देते हैं कि NO2, P4O10 and SO3 are soluble in water, giving acidic solution. Okay. Question number 6. Which statement about iodine atoms and iodide ions is correct? Iodine atom or iodide ions have same number of protons, क्योंकि इनका atomic number change नहीं होता, and therefore C is going to be the right answer. वैसे मैंने ये variance 11 के अंदर explanation काफी डिटेल से दी हुई आपको. Okay. The table contain information about 4 substances. Which substance is an ionic compound? Guys, ionic compound की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ionic compound जो होता है वो solid है at RTP. तो solid ये भी है, solid ये भी है, solid ये भी है. दूसरी बात, ionic compounds cannot conduct electricity in solid. Cannot conduct in solid state. Okay. तो सॉलिड में कौन कौन नहीं कंडक्ट कर रहा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. तो ये भी सही है और ये भी सही है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. ऑब्वियसली ये दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं कंडक्ट कर लेंगे. और आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इन मोल्टन, कैन कंडक्ट इन मोल्टन एंड इन एक्वस स्टेट. ओके. तो मोल्टन में भी कर लेता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. और एक्वस में भी कर लेता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. तो सारे चेक्स कहां पर करेक्ट हैं? डी में करेक्ट है, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. फिर वो कह रहे हैं व्हाट इज द न्यूक्लियन नंबर ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम दिस. सो गाइस, आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियन नंबर है because nucleon number is a sum of proton and neutron, and therefore C is going to be the correct answer. An ionic compound has the formula Al2O3. What are the charges on the ions? Aluminum oxide एक ionic compound है. इसमें aluminum ions होते हैं, इसमें oxide ions होते हैं. तो Al2 plus and O2, Al3 plus and O2 minus, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है. So D is going to be the right answer. Okay. Next, which two pairs of atoms are held together by the same number of bonds? First pair of atom है और फिर second pair of atom है. वो कह रहे हैं two carbon atoms in a C2H4 molecule. तो guys, सबसे पहले तो हम C2H4 molecule बना लेते हैं और आपको हमने ये बना के दिया है क्लास के अंदर. इसका मतलब आपको ये याद होना चाहिए. C डबल बॉन्ड CH2. सही है ना. तो देखो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है
और इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया है, राइट। फिर वो कह रहे हैं द कार्बन एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम इन CO2 मॉलिक्यूल। तो भाई अगर मैं CO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं, जो कि मैंने आपको बना के दिया हुआ है क्लास में, वो याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो वो कह रहे हैं द कार्बन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम इन CO2 मॉलिक्यूल। तो देखो इन दोनों के दरमियान भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो कार्बन इज अ एलिमेंट जिसके साथ जिसमें सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है। ये सेकंड एलिमेंट के सेकंड पेयर ऑफ एटम के साथ है और ये फर्स्ट पेयर ऑफ एटम के साथ है। सो आई थिंक ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, और कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, boron trifluoride is a simple molecule. There are 3 covalent bonds in each BF3 molecule. तो एक काम करते हैं, हम BF3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये BF3 का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, सही है भाई। 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए हमारे पास। फिर वो आगे कह रहे हैं कि ईच ऑफ दीज बॉन्ड्स इज मेड बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोरॉन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फ्लोरीन एटम। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता ही उस वक्त है जब 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, राइट। व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट द बॉन्डिंग इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड? सबसे पहले देखो कि आपके पास टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। 3 कोवेलेंट बॉन्ड है ना। सो 1 कोवेलेंट बॉन्ड is always equal to 2 electrons, right? तो अगर आपके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो बेसिकली ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा, है ना। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट फॉलो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमने जितना पढ़ा है उसमें सारे एलिमेंट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहे हैं, मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, दैट्स वेरी वेरी यूजुअल when a non-metal such as fluorine can form covalent bonds. तो फ्लोरीन के लिए बहुत अनयूजुअल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। तो ऑब्वियसली वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। आयनिक बनाता है इन सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। फिर वो कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड डू, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ओके, फिर वो कह रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड डू नॉट कंसिस्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ भाई, कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन कोवलेंट बॉन्ड हैज वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। The fluorine atom in each molecule do not gain electronic configuration of a noble gas. नहीं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है वो। ये भी गलत, बिकॉज फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा तो फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो फ्लोरीन तो नोबल गैस फॉलो करता है, बोरॉन फॉलो नहीं करता। ठीक है, बिकॉज बोरॉन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑलराइट, ओके, दैट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन बाय द वे। Next question, which equation is correct for the reaction between carbon dioxide and magnesium hydroxide? So magnesium hydroxide तो guys आपके पास एक alkali है और आप उसको रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जैसे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला स्टेटमेंट है और उसकी इक्वेशन लिखवाई है, बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी इक्वेशन होगी। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। आप ये चेक कीजिए कि कहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है, ये भी गलत, ये भी गलत। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो राइट आंसर इज ए ऑब्वियसली, क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर अवेलेबल है, राइट। 13, which mass of oxygen gas combines with exactly 16 gram of sulfur to form sulfur dioxide? तो मैंने ये वेरिएंस 11 में भी क्वेश्चन काफी डिटेल से कराया है। मैं इसका शॉर्टकट कुछ इस तरह से दे देता हूं कि मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ सल्फर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 16 को आप 32 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल्स आ जाएंगे। आई होप यही हो। 16 डिवाइड बाय 32 इज गोइंग टू बी 0.5 मोल्स। ओके, और आप जानते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के दरमियान मोलर रेशियो सेम है। तो जो मोल्स ऑक्सीजन के हैं वही मोल्स सल्फर के होंगे, सॉरी, जो मोल्स सल्फर के हैं वही मोल्स ऑक्सीजन के होंगे। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, सो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा
MR ऑफ ऑक्सीजन से विच इज 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का 32 होगा. So it's going to be 16 gram. The right answer is going to be, guys, C. Okay. Which compound has an empirical formula that is different from its molecular formula? यार शॉर्टकट ये है कि मॉलिकुलर फॉर्मूले का हाफ करो तो एम्पेरिकल आता है, राइट? देखो मैं कार्बन को हाफ कर सकता हूँ, हाइड्रोजन को हाफ कर सकता हूँ, ऑक्सीजन सिर्फ वन एटम है, उसको मैं हाफ नहीं कर सकता. इसका मतलब यही एम्पेरिकल भी है और यही मॉलिक्यूलर भी है. सो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गई. सिमिलरली वाटर के साथ भी ऐसी है, मैं हाइड्रोजन को तो हाफ कर सकता हूँ, ऑक्सीजन क्योंकि वन एटम है इसको हाफ नहीं कर सकता. तो सेम रीजन कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है. सही है. ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज मैं ऑक्सीजन को तो हाफ कर सकता हूँ, यानी वन ले सकता हूँ, लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि वन एटम है इसको मैं हाफ नहीं कर सकता. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा HO. Half of molecular is empirical formula. Okay. Okay. Next question is a bit tricky. 4 gram of sodium hydroxide is dissolved in 250 cm cube water in a graduated flask. तो सबसे पहली जो लाइन है पहले उससे रिलेटेड वर्किंग कर लेते हैं. ये हमारा पहला स्टेप है कि हम मोल्स ऑफ NaOH ले लेते हैं. हम 4.0 को डिवाइड कर देते हैं 40 से. 40 is the MR of NaOH. ओके. तो यहां से मेरे पास मोल्स आ जाएंगे. 4 divided by 40 is going to be 0.1 मोल. ऑलराइट. अच्छा, ये जो मोल्स मेरे पास थे ये मैंने 250 cm क्यूब वाटर में डिसॉल्व किए. तो 0.1 मोल इन 250 cm क्यूब of water. Now, in the next part of the question, 25 cm cube sample of this solution is titrated with this concentration of HCl. Okay. So इसका मतलब ये हुआ कि 250 cm क्यूब में मेरे पास 0.1 मोल थे NaOH के. तो 25 cm क्यूब में कितने होंगे? तो 0.1 into 25 divided by 250 is going to be 0.01 mole. Okay. Now the next part of the question is which volume of hydrochloric acid is required to exactly neutralize alkali? Guys, आप जानते हो कि ये एक मोनोबेसिक एसिड है. अगर ये मोनोबेसिक एसिड है तो ऑब्वियसली NaOH और HCl के दरमियान 1:1 का रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर. सो जो मोल्स NaOH के हैं वही मोल्स HCl के होंगे. HCl has a concentration of 0.5 mole per dm cube. Per dm cube is basically 1000 cm cube. So 1000 cm cube of HCl contain 0.50 moles. How much moles we have? 0.010 moles of HCl we have. So बताइए volume of HCl कितना हो जाएगा? तो multiply by 1000 and divided by 0.5. So it's going to be 20 cm cube. So volume of HCl is going to be 20.0 cm cube. So 20.0 cm cube. Option B is given. B is going to be the correct answer. All right. I hope it makes sense to you. ये याद रखिएगा कि NaOH और HCl दोनों के दरमियान रेशियो 1:1 का है. तो जो मोल्स NaOH के हैं वही मोल्स मैंने HCl के ले लिए. कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन थी, मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया. ओके. ये 20.0 cm क्यूब है. ओके. Question number 16. Dilute aqueous solution of potassium chloride and magnesium chloride are mixed together. A sample of the mixture is electrolyzed using inert electrodes. What are the possible products of each electrode? जाहिर सी बात है, अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करूंगा, so obviously hydrogen gas is given off at anode. इस इलेक्ट्रोलाइट को यूज करूंगा तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस गिवन ऑफ एट कैथोड.
ओके, तो हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट कैथोड, और हाइड्रोजन गैस सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है, विच इज व्हाई सी इज द राइट आंसर। बाय द वे, हम पोटेशियम को नहीं ले सकते क्योंकि ये मेटल उस वक्त कैथोड के ऊपर आपको हासिल होंगे जब ये मेटल्स मोल्टन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ओके, इसलिए ये आंसर गलत। और ऑक्सीजन तो आपको पता है ना, हमेशा एनोड पे रिलीज होता है, विच इज व्हाई ऑक्सीजन इनकरेक्ट होगा। ओके, सो इस केस में भी क्या होगा? ऑक्सीजन गैस एट एनोड, और इस केस में भी क्या होगा? ऑक्सीजन गैस एट एनोड। तो दोनों केसेस में ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे और हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। Question number 17, again related to electrolysis. The table gives some statements about electrolysis and the reason why each statement is true. Which row shows a correct statement? Correct statement की बात कर रहे हैं, हाँ? The correct reason why the statement is true. All right, let's start. All right, let's start. Aqueous copper to sulfate and aqueous copper to nitrate are suitable electrolytes. That's correct. When used to copper plate object. बिल्कुल सही बात है, that's right. Reason, both solutions contain copper ions, that's also right, and can transfer copper from anode to cathode, that's also correct. So I think A is going to be the right answer, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो आपका impure anode होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जिसकी वजह से कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट में चले जाएंगे और फिर वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट से ट्रांसफर हो जाएंगे कैथोड की तरफ। तो कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा और इस तरह से वो इलेक्ट्रोप्लेट होना शुरू होगा। ऑलराइट, कॉपर और प्लेट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोप्लेट होगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर कट ए। इस पे कोई और जो है ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते डिस्कशन, बहुत ही सुपर डुपर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बाकी भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। During the extraction of aluminum from aluminum oxide, the carbon anodes have to be replaced regularly. That's correct. क्यों? Because anode dissolve itself. Because anode पे जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करता है कार्बन के साथ। ये जो रीजन दी हुई है ये गलत है, इसलिए ये गलत। ओके, in the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride and of dilute sulfuric acid, the same products are formed. भाई सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन गैस, यहां से भी हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीजन गैस, क्योंकि रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्लोराइड गैस, तो सेम प्रोडक्ट तो नहीं हुई। क्योंकि सेम प्रोडक्ट नहीं है इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। When the aqueous mixture of zinc nitrate and copper to sulfate is electrolyzed, zinc is formed at the cathode. Not at all. Zinc की रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है कॉपर से, इसलिए जिंक कभी भी कैथोड पे कलेक्ट नहीं होगा, कॉपर कलेक्ट होगा, इसलिए ये भी गलत। ठीक है? Oh my goodness. Okay. A student proposed 4 cells to produce electricity in a college laboratory. Which cell would produce the largest voltage in a safe way? तो 2 पॉइंट है यहाँ पर। लार्जेस्ट वोल्टेज उस वक्त होगा जब रिएक्टिविटी गैप बहुत ज्यादा होगा। तो बिगर गैप, ओके। और सेफ वे इसका मतलब कैन नॉट use very reactive metals which are high up in the reactivity series. We cannot use them. Okay, तो हम बेसिकली क्या करते हैं? हम बेसिकली क्या करते हैं? हम बेसिकली जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। हम कुछ इस तरह से देखते हैं। सबसे पहली बात, ये एक्वस कॉपर सल्फेट है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी एक्वस है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट चारों में बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का गैप देखना है आप। माय गुडनेस, ए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर इनकरेक्ट। व्हाई? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है इट हैज टू बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उन्होंने यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड पे कर दिया है, विच इज नॉट करेक्ट। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मोर
reactive metal has to be on the left hand side. सही है, इसलिए ए और बी दोनों गलत, ए भी गलत और बी भी गलत। सी भी गलत क्योंकि सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, तो सेफ नहीं होगा ये, नॉट सेफ। So right answer is going to be D. Electrolyte is fine. जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ओके जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और रिएक्टिविटी का गैप भी इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा है, तो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ वोल्टेज, ओके। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 19. Nitrogen oxide may form in the atmosphere during lightning activity. The reaction is endothermic. If the reaction is endothermic और हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, तो हम जानते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is greater than reactant. All right. तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी, सॉरी सी एंड डी, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर डी, क्योंकि ये बैरियर होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जो कि बिल्कुल ठीक तरह से डायग्राम बनी हुई है, ओके ऑलराइट। ये तो बैरियर ही नहीं शो कर रहा एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। ओके, व्हिच टू processes are both endothermic? Which two processes are both endothermic? So option A is incorrect because combustion is exothermic. Option B is also incorrect because combustion is exothermic. Option D is also incorrect because respiration is exothermic. Right answer is going to be C because cracking be endothermic, photosynthesis be endothermic. Okay. 21. Magnesium reacts with dilute sulfuric acid. That is the equation. Which changes in the conditions will result in the lowest rate of production of hydrogen? सबसे पहली बात याद रखो कि rate of reaction is directly proportional to concentration. Okay, concentration ज़्यादा, rate of reaction ज़्यादा, concentration कम, rate of reaction कम. दूसरा, rate of reaction is inversely proportional to the particle size. Okay, और तीसरा, rate of reaction is directly proportional to temperature. मैंने ये तीन फैक्टर्स इसलिए लिए क्योंकि एग्जामिनर ने कंसंट्रेशन, पार्टिकल साइज और टेम्परेचर तीनों दिया है, तो मैंने टेम्परेचर का रिलेशनशिप, पार्टिकल साइज का रिलेशनशिप और कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप आपको बता दिया। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन, वो कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन के अंदर बहुत कैटेगोरिकली लोएस्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो लोएस्ट रेट उस वक्त होगा जब कंसंट्रेशन कम होगी, तो कंसंट्रेशन ये रही कम, सही है। टेम्परेचर ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, टेम्परेचर कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होना चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन कम उस वक्त होगा जब पार्टिकल साइज ज्यादा होगा, तो पार्टिकल साइज यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, एंड ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, question number 22. Carbonates reacts with dilute acid to produce carbon dioxide. A student uses excess carbonate and 100 cm cube of 0.1 mole per dm cube acid. अच्छा, पहली तो बात ये हो गई जो मुझे यहां से पता चल गई कि जनाब एसिड जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सही है, एसिड जो है वो आपका क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ओके, तो ये बात ध्यान में आ गई। अच्छा, दूसरी बात, लेट्स
Read the question again. Measure the volume of hydrogen gas produced at regular time interval. Fine. The next part of the question is the result gives line X on the graph. ये रही वो line X. ठीक है? Okay. The student repeats the experiment using 50 cm cube of 0.2 mole per dm cube acid, whilst complete keeping everything else the same. So यहां से एक पॉइंट मुझे और पता चल रहा है, और वो ये कि ये सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, लेस स्टीपर कर्व होगा, जो कि उसने ये दे दिया है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोर स्टीपर कर्व होगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर होगा। सही है। तो एक बात तो तय हो गई है कि जनाब जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है, जो कि 0.2 मोल पर डीएम क्यूब एसिड यूज करने से हुआ है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन हायर होगा, मोर स्टीपर कर्व होगा। तो मोर स्टीपर कर्व जो है वो ए में है, मोर स्टीपर कर्व जो है वो बी में है। ऑब्वियसली सी का स्टीपर कर्व नहीं हो सकता, डी तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ये तो बहुत ही लीस्ट स्टीपर हो गया, राइट। तो सी और डी इनकरेक्ट, क्योंकि लीस्ट स्टीपर है, मोर स्टीपर होना चाहिए। तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। अब पॉइंट इज कि वॉल्यूम ऑफ गैस सेम कलेक्ट होगी या डिफरेंट, ये देखने के लिए हम इन वैल्यूज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 में सबसे पहले मोल्स फाइंड करता हूं। एक्सपेरिमेंट 1 जब मैंने कंसंट्रेशन यूज की थी 0.1, तो 1000 cm क्यूब में मेरे पास HCl के मोल, आई मीन एसिड के मोल्स हैं 0.1। अगर मैंने 100 cm क्यूब लिया हुआ था ऐसे, तो बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आई थिंक 0.01 मोल्स। इन एक्सपेरिमेंट 2 मेरे पास कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, मीनिंग 1000 cm क्यूब में मेरे पास 0.2 मोल पर मोल्स होंगे। तो अगर मेरे पास 50 cm क्यूब वॉल्यूम था क्वेश्चन में, oops, my writing sucks really, but I'm sorry about that, 50 cm क्यूब, तो बताओ मोल्स कितने होंगे? तो आई बिलीव मोल्स हो जाएंगे 0.01। तो इशू इज कि हमारे पास यहां सेम मोल्स हैं, hence volume of gas is also same. So volume of gas also same कहां पर है? B में है। B is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Let's start question number 23. In question 23, examiner is saying in the contact process, sulfur is converted into sulfuric acid. A catalyst is added to the reaction mixture shown in the equation. पहली तो बात ये, जो catalyst हम use करते हैं उसका नाम है वेनेडियम 5 ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है V2O5. Okay, वो कह रहे हैं what is the purpose of the catalyst? Obviously catalyst lowers the activation energy for the reaction, and therefore A is going to be the correct answer without any doubt. Okay, now let's move on to the next question. Question number 24. वो कह रहे हैं which change involves reduction? तो reduction ये actually हमने variance 11 में भी question किया था बहुत डिटेल से। इसका आंसर है D, इसलिए क्योंकि सैंड का फॉर्मूला होता है SiO2। अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो सिलिकॉन में, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ओके, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। Question 25. Under certain conditions, iron reacts with chlorine to form iron 3 chloride. Which statement about this reaction is correct? Okay, which statement about this reaction is correct? According to my lecture, all metals are reducing agent. Okay, according to my lecture, all halogens are oxidizing agent. So all metals are reducing agent, all halogens are oxidizing agent.
So it means chlorine is the oxidizing agent and therefore A is going to be the right answer. Okay. अच्छा मैं ऑप्शन बी भी पढ़ देता हूँ. जितने रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं. जब वो खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करेंगे, इसलिए गलत. आयरन इज रिड्यूस्ड, तो मैंने कहा आयरन दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मतलब ये भी गलत. दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए ये भी गलत. ओके, क्वेश्चन 26. The equation shows a reaction in the contact process. Delta H is negative. इसका मतलब forward reaction is exothermic. Forward reaction is exothermic. Now, which change would move the position of equilibrium to the left? तो भाई left पे हमने जाना है और left पे उसी वक्त जाएंगे जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे. ओ, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, माय बैड. सही है, तो राइट आंसर इज सी, बिकॉज मैंने पढ़ा है कि व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेस इन एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, position of equilibrium favors towards left hand side, and if position of equilibrium favors towards left hand side, obviously if position of equilibrium favors towards left hand side, obviously equilibrium favors towards backward. Okay, question 27. The table shows the pH values of some substances that can be consumed by humans. Okay, which statement about these substances are correct? First of all, इसकी pH value 6.6 है तो इसका मतलब ये एसिडिक होगा. इसकी pH value 3.1 है, इसका मतलब ये भी एसिडिक होगा. इसकी pH वैल्यू जो है वो 10.4 है, इसका मतलब ये भी एल्कलाइन होगा. और 7.8 है, नॉट न्यूट्रल, ऑब्वियसली, क्योंकि 7 से ज्यादा हो गई है pH. ठीक है, तो P is alkaline, absolutely wrong, because P is acidic. Now the next is Q has the lowest concentration of hydrogen ions. C, pH is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion. तो अगर pH कम है तो इसका मतलब उसकी concentration of hydrogen ion जो है ज्यादा होगी, तो वो कह रहे हैं लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है. ओके, तो ये गलत हो गया हमारा. आई रिपीट, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम है. ये पीएच वैल्यू कम है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगी? ज्यादा होगी. तो वो कह रहा है लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आर can neutralize excess stomach acid. Acid stomach में acid होता है and R is an alkali, so they can react together, they can neutralize each other. So C is going to be the right answer. Last but not the least, S has a pH value closest to neutral. Closest to neutral नहीं, it is not neutral. 7.1 होता, 7.2 होता, 7.3 होता, मैं close to neutral मान लेता, but it is greater than 7.5. I cannot say it is closest to neutral, which is why D is also incorrect. Question 28. Solution X is added to solid salt, causing gas Y to be evolved. Okay. Okay. Causes gas Y to be evolved. Gas Y dissolves in water. Okay. Gas Y dissolves in water, resulting in a solution with a pH less than 7. If the pH of the resulting solution is less than 7, that means solution is acidic. Solution is acidic. My goodness, solution is acidic. Oh my goodness. And obviously this must be the acidic gas, because अगर acidic gas है और वो solution में dissolve हो रहा है तो इसका मतलब अमोनिया. रॉन्ग, क्योंकि अमोनिया इज द ओनली अल्कलाइन गैस, तो ये तो गलत हो गया. तो राइट आंसर आइदर बी और डी. ओके ओके,
और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑलवेज फॉर्म व्हेन वी ऐड एसिड, ऑलराइट। एल्कली से कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती, तो एसिड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं कि आपके पास लेट सपोज एक कंपाउंड है जिसमें कार्बोनेट आइंस हैं, अगर मैं उसको एसिड से रिएक्शन करवा दूं, फॉर इंस्टेंस HCl, तो ये सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी? एसिडिक गैस है। तो अगर ये आपके पास एसिडिक गैस है तो जाहिर सी बात है एसिड के ऐड करने से मिल रही है, विच इज वाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 29, which substance reacts with dilute sulfuric acid in the preparation of pure sample of lead to sulfate? आप जानते हैं कि lead to sulfate एक insoluble salt है, और मैं कई मरतबा कह चुका हूं कि insoluble salt is always formed when two soluble substances react together. When two soluble substances react together, तो ऑब्वियसली इसमें से ये भी इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है, ये भी गलत। लेड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के बहुत नियरेस्ट होती है, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इज ए। और all nitrates are soluble, which is why we need to opt lead to nitrate as the correct option. Okay, so A is going to be the right answer. Question number 30. A pure sample of the salt is obtained by filtration followed by evaporation of the filtrate. तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज फिल्ट्रेट की इवेपोरेशन करनी है, और तो वो कह रहे हैं आपसे which pair of reagents would produce the salt. अच्छा, कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद HCl. ओके ओके ओके, सॉल्ट जो मुझे चाहिए ना, वो इवेपोरेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के थ्रू चाहिए। तो ऑप्शन सी इज इन ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि जब सिल्वर नाइट्रेट और HCl का आपस में रिएक्शन होगा, HCl का आपस में रिएक्शन होगा, तो ये कन्वर्ट होगा AgCl में और नाइट्रिक एसिड में। आप जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, प्रेसिपिटेट होते हैं, तो प्रेसिपिटेट तो फिल्ट्रेट की इवेपोरेशन से नहीं मिलेगा। ये नाइट्रिक एसिड है, ये सॉल्युबल होगा, और ये नाइट्रिक एसिड क्योंकि सॉल्युबल है, तो अगर मैं इसकी इवेपोरेशन करूंगा तो इसका मुझे कोई सॉल्ट नहीं मिलेगा, ये तो एसिड है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो राइट आंसर गाइस इज बी ऑब्वियसली, इसलिए क्योंकि कॉपर कार्बोनेट को जब मैं HCl से रिएक्शन करवाऊंगा, इट विल टर्न टू कॉपर क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हैं ये इनसॉल्युबल है, आप जानते हैं ये सॉल्युबल है, तो मैं सबसे पहले फिल्ट्रेशन करके इन दोनों को सेपरेट करूंगा। ये मेरे पास सॉल्युबल पार्ट है, इसका फिल्ट्रेट मुझे मिलेगा, इसका फिल्ट्रेट मुझे मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं उसको इवेपोरेट करके कॉपर क्लोराइड के क्रिस्टल्स हासिल कर लूंगा। ठीक है। which set of conditions is used in the contact process? Contact process में हम वेनेडियम 5 ऑक्साइड दैट इज V2O5 का एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। जो प्रेशर है वो 1 से 2 एटमॉस्फेयर यूज होता है, और जो प्रेशर है वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस यूज होता है। सो आई थिंक सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। 31C, 31C, 31C is going to be the correct answer. 31C is going to be the correct answer. Okay. In question number 32, part of the periodic table is shown. Which substance is an unreactive gas found in the atmosphere? Guys, in the atmosphere we have two gases. The first one is nitrogen and the second one is argon. Okay. आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन belongs to group 5, और आप सब जानते हो कि आर्गन belongs to group 8।
ये आपका ग्रुप 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये आपका ग्रुप 8 है। तो राइट आंसर इज डी, बिकॉज ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट होना चाहिए, ग्रुप 3 ग्रुप 8 का, ग्रुप 5 का तो कोई एलिमेंट ही नहीं दिया एग्जामिनर ने हमें, इसलिए हमने ऑप्शन डी लिया, क्योंकि ये हीलियम है, ये नियॉन है एंड ऑब्वियसली ये आर्गॉन। ठीक है, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम द ओर हेमाटाइट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैंने वेरिएंस 11 में भी करवाया, कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर, और मैंने वहां तमाम ऑप्शंस को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया। इस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, इट इज कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो एसिडिक इम्प्योरिटी होती है हेमाटाइट ओर में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएगा जिसको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट। ये स्लैग है, मोल्टन स्लैग, इसमें आ जाएगा। ओके, that's how we can remove the impurities from the extraction process. Okay, question 34, pollution may be caused by oxides of carbon, nitrogen and sulfur. Which element can each form more than one oxide? All of them can form more than one oxide. 34 is A. That's so obvious. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसी पेपर में आपको बताया कि कार्बन जो है वो 2 ऑक्साइड्स बनाता है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन भी 2 बनाता है, एक है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक है सल्फर, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, 35, a river runs through an area of land that is used for growing cotton. The cotton farmers applied a large amount of fertilizer to the field. This causes eutrophication in the river water. Which statement is correct? Guys, eutrophication हमेशा excessive use of nitrate और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। ओके, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। व्हाई नॉट डी? डिक्रीज लेवल ऑफ मिनरल सॉल्ट कॉजेज द यूट्रिफिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। डीसैलिनेशन वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है, यूट्रिफिकेशन में नहीं होता, ये भी गलत। ऑक्सीजन लेवल इन द रिवर वाटर डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, इसलिए ये भी गलत। ओके, 36, which compound is an alkane? Let's open the structure for all. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ओपन करो। This is CH2, then double bond, then CH, then CH2, then CH3. So basically it is an alkene, not alkane, because it has one double bond between the carbon atom. So this option is going to be incorrect. I think B is going to be the right answer. Yeah, B is going to be the right answer because ये alkane है। कैसे पता चल रहा है? ओपन करो स्ट्रक्चर। CH3, then CH, then CH3, and then CH3. All right. So ये एक alkane है because all carbon atoms are single bonded. All carbon atoms are unsaturated. Oh, sorry, all carbon atoms are saturated. My bad. Guys, ये एक alkene है, and guys ये भी एक alkene है। अगर आप स्ट्रक्चर ओपन करेंगे आपको अंदाजा होगा, मैंने क्लास में करवाया हुआ है आपको। ये दोनों गलत हैं क्योंकि दोनों alkenes हैं। ठीक है? Oh my goodness. The equation shows the reaction that takes place when butanol is completely combusted in air. What are the values of X and Y and Z? So let's do one thing. C4H9OH लेते हैं, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। हम सब जानते हैं कि वी हैव 4 कार्बन एटम हियर, तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे। वी हैव 9 + 1 10 हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है 10 हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 5 लेंगे। 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13। और तो मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ, इसलिए ये हो जाएगा 6 × 2 12, 12 + 1 13।
सो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है 6, तो x की वैल्यू 6 यहाँ पर है, तो यही मेरा आंसर भी होगा ऑब्वियसली, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये मेरा y है, y की जो वैल्यू है मेरे पास वो 4 है, ये मेरा z है और z की जो वैल्यू है मेरे पास 5 है, तो z की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, मेरा राइट आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन 37, ये हमने वेरिएंस 11 में भी किया है। प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर कैल्शियम प्रोपेनोइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CH2COOH। एग्जामिनर हो सकता है इसको इस तरह से लिख दें C2H5COOH। तो इन दोनों में से देखें कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ लिखा हुआ है। C2H5COOH ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, इसका मतलब सी भी गलत, डी भी गलत, क्योंकि ये दोनों ब्यूटानिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी ब्यूटानिक एसिड, ये भी ब्यूटानिक एसिड, गलत हो गया। ऑप्शन ए इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है COCO3, एग्जामिनर ने यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। दैट्स इजी, मतलब मुझे बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे इसकी इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जज कर लिया इस फॉर्मूले की बेसिस पे कि ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, मैंने जज कर लिया इस फॉर्मूले की बेस पे कि ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर इज बी। 39, which row shows all the elements present in the polymer listed? नायलॉन, नायलॉन होता है आपके पास CONH, इसका मतलब इट हैज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये आ जाएगा। पॉलीइथीन, पॉलीइथीन is basically CH, only 2 elements C and H, तो C and H ये आ गए। ओके, टेरेलीन, टेरेलीन का फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर, तो इसमें आपके पास कार्बन, ऑक्सीजन और ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन तो होती है। तो COH ये भी है और ये भी है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑब्वियसली। बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, the partial structure of polyamide is shown, which monomer would produce this polymer? मैंने आपसे कहा था क्लास में, मैंने कहा था कि मोनोमर देके पॉलीमर पूछता है, और हो सकता है कि पॉलीमर देके मोनोमर पूछे, तो देखिए मेरी बात प्रूफ हो रही है दोबारा से कि ये पॉलीमर है और वो हमसे मोनोमर पूछ रहा है। और इसको सबसे आसान तरीका मैंने ये बताया था आपको कि यार जो ये कौन सा बॉन्ड है, ये अमाइड बॉन्ड है, ऐसा ही है ना, अमाइड लिंकेज है, तो मैंने कहा था कि कोई भी पॉलीमर मिले उसका लिंकेज ब्रेक कर दो, तो मैंने यहाँ से लिंकेज को ब्रेक कर दिया, सही है। अब जब मैं लिंकेज को ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिल रहा है CO, उसके साथ एक बॉक्स और उसके साथ एक NH, तो जाहिर सी बात है इट हैज टू बी NH2 एंड इट हैज टू बी OH। ये तुम्हारा मोनोमर हो गया जिसकी वजह से ये पॉलीमर बना। ये चेक करो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास ऑप्शन 1 में, सही है। हाँ, कोई इशू नहीं है कि मैंने यहाँ COOH लिखा, एग्जामिनर ने यहाँ लिखा, बट है तो मोनोमर का पार्ट, तो ये फ्लिप हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो 1, राइट आंसर इज A। आई थिंक A is going to be the right answer. That's how you need to determine the monomers from the polymer. I hope it makes sense to you. Thank you very much.